Hello friends, this is Sachin and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss Crime and Punishment, which has been written by Fyodor Dostoevsky. This novel was published in 1866 and it is a world classic novel and it is a must read for UGC NET, for any other exam, and even if you are a normal human being you can even read that novel. So this is a must read novel, you must read once in your life. Okay. So what happens, you know, sometimes we commit crime and we never get punished for that crime, and we try to conceal our crimes. Sometimes we told a lie and our that lie didn't get discovered, while sometimes it happens that we committed a sin and we didn't get any punishment for that sin. And continuously there is something prickness in our soul, something is haunting our souls till we didn't get the punishment for that crime. It happens when you commit a crime and you didn't get any kind of punishment for that crime. So there is a kind of prickness in the soul till you didn't get any kind of punishment for that crime. Okay, so this things, the same thing happens with the protagonist of this novel, that is Rodia Romanovich Raskolnikov. This is protagonist full name, that is Rodia Romanovich Raskolnikov. He has a sister also, that is Danya Romanovna Luisa, and he has a mother also who is Pulcheria Alexandrovna. So what happens? Our protagonist Raskolnikov commits a crime. He killed a pawnbroker, a lady, Ilya Ivanovna, and he also killed his stepsister, and he never got punished or never got caught in the crime. He didn't get any kind of punishment till the end of the novel, and that's why there is a kind of prickness in his soul. There is kind of a struggle going on in between his soul, and that is why it is also regarded as the psychological novel. Okay, so now let us discuss the story in details. So friends, होता क्या है कि कहानी स्टार्ट होती है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है रास्कोल्निकोव, है ना। तो वो क्या करता है, बहुत गरीब है, लो स्टूडेंट है, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, 23 साल की एज है उसकी, लेकिन गरीब तो है ये, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है, इंटेलेक्चुअल बहुत है। इसने एक ऐसे भी लिख रखा है, उसमें इसने मेंशन किया था कि जो दो तरह के आदमी होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैन, वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड वन इज ऑर्डिनरी. Ordinary lives in the present while the extraordinary makes the future. He lives in the future. Okay, so ये नीट्शे की फिलोसफी को फॉलो करता है, यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी को फॉलो करता है. ओके, रैशनलिज्म की फिलोसफी को भी फॉलो करता है ये. ओके, तो उसी तरीके का ये स्टूडेंट है. इसने ऐसे लिख रखा है, जो मैंने आपको भी बता दिया कि ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ऊपर इसने एक ऐसे भी लिख रखा हुआ है कि ऑर्डिनरी मैन जो है ना नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जैसे कि आम लोग जीते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैन होते हैं ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं. उन्हें एक अलग हक होता है. दे हैव ए राइट टू कमिट एनी काइंड ऑफ क्राइम एंड दे विल नेवर गेट द पनिश फॉर इट, बिकॉज दे विल डू दिस काइंड ऑफ क्राइम in the betterment of the society. He is a staunch follower of Napoleon Bonaparte, who did so many crime in his life for the benefit of the society. That is what he believes. Okay, so that is why this kind of psychology has the protagonist. Our protagonist has this kind of psychology that he can commit any crime for the betterment of the society. Okay, तो होता क्या है कि ये एक दिन फोन ब्रोकर के पास जाता है, कुछ घड़ी वगैरह लेके अपनी फोन ब्रोकर के पास जाएगा. ये उसको एक घड़ी देता है अपनी. ही गिव्स हिज वॉच एंड ही टू लेंड फॉर सम मनी फ्रॉम हर. और जैसे ही वो अपनी पीठ उधर घुमाती है वो घड़ी को चेक करने के लिए ये रियल है या नहीं है, कुल्हाड़ी इसने ली होती है हाथ में, एक्स ली हुई है साथ में, मार देता है उसी के वक्त. उसके बाद मनी कलेक्ट करता है. इसी बीच क्या होता है, उसकी सिस्टर आ जाती है. हर स्टेप सिस्टर कम्स इनटू द रूम. तो बिल्कुल ध्यान से निकल जाता है, क्योंकि इसने मर्डर जो है ना वो तो दिमाग में सोचा हुआ था कि जो हमारी इलिया इवानोवना है, फोन ब्रोकर है, उसका मर्डर कर देगा ये मनी के लिए, पैसे के लिए. वो पैसा वो यूज करेगा बेटरमेंट, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए. लेकिन लिजा बेटा जो उसकी स्टेप सिस्टर थी उसका तो बीच में ध्यान ही नहीं था कुछ भी. वो सीन पे आ जाती है, मारना पड़ता है उसको, वो बता देगी पुलिस को, ये पकड़ा जाएगा.
तो उसको भी साथ में मार देता है। फिर जल्दी में क्या करता है, हरी में दिमाग खराब हो जाता है, इसको उसको मार के 2 लाशें देख के आमने सामने पूल ऑफ ब्लड में 2 लाशें देख के बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है इसका। तो जो हाथ लगता है ना, इसके थोड़े से पैसे निकल के ले जाता है, बाकी सारे पैसे वहीं पे छोड़ देता है। ये सारे पैसे लेके नहीं जाता है, थोड़े से पैसे लेके जा जाता है, कुछ यूजली लेके चला जाता है। ठीक है जी। और सॉरी, थोड़ा आंख में कुछ चला गया। और फिर क्या होता है, वापस अपने रूम में आ जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे उठता है, फिर इसको पुलिस जो है ना समन आया होता है, लेकिन डर जाता है कि ये तो मतलब अगले दिन ही पकड़ा गया वो। लेकिन वहाँ पे जब जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी लैंड लेडी ने उसके जो उसने किराया नहीं दिया था उसकी वजह से उसको वहाँ पे समन किया था, और वहाँ पे वो पैसे दे देता है, मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन वहीं पे कोई बात कर रहा होता है उसके मर्डर की, पॉन ब्रोकर के मर्डर की, और उसकी स्टेप सिस्टर के मर्डर की बात कर रहा था, और उसके फेंट्स हो जाता है, और तभी से पुलिस को इसके ऊपर शक हो जाता है। फिर वापस आ जाता है, वो बीमार हो जाएगा, कुछ दिन ऐसे पड़ा रहता है। और फिर इसका एक फ्रेंड है राजुमिखिन, वो उसका ध्यान रखता है, और उसकी जो नस्तस्या है उसकी जो सफाई वगैरह करने आती है उसके घर पे, वो दोनों उसका ध्यान रखते हैं 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन के बाद उसको होश आती है तो पता चलता है कि ये उसमें होता है। इसी बीच एक जामेतो हो गया पुलिस ऑफिसर, ASI है, ठीक है जी, वो भी वहाँ पे है, क्योंकि उनको शक है कि रास्कोल्निकोव ने ही पोन ब्रोकर का और उसकी बहन का मर्डर किया होता है। और एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर जोशीमोव, वो भी उसे देखने आया होता है वहाँ पे। डेली वो वहाँ पे उसके रूम में आ रहे हैं, उसको चेक करने आ रहे हैं, ठीक है जी। और एक हमारा डिटेक्टिव भी है यहाँ पे, पोर्फरी पेट्रोविच पोर्फरी डिटेक्टिव है, वो साइकोलॉजिकली टॉर्मेंट करता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को उससे निकलवाने के लिए कि पोन ब्रोकर उसकी स्टेप सिस्टर का मर्डर इसी ने किया है, लेकिन वो एक्सेप्ट इस चीज को नहीं करता है। ठीक है जी। दूसरी ओर रास्कोल्निकोव की बहन है डन्या रोमानोवना, लुइसा भी उसे जाना जाता है, लुइसा के नाम से भी। वो एक स्विद्री के लोग एक अमीर ज्यादा है, उसकी वाइफ का नाम है मार्फा। उनके घर पे जो है ना वो काम करने जाती थी, एज ए ट्यूटर काम करने जाती थी उनसे बच्चों के लिए। और स्विद्री के लोग की बुरी निगाहें होती हैं उसकी बहन पे, जो कि डन्या है उसके ऊपर। और वो ट्राई करता है उसे सिड्यूस करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है। उसने ऑलरेडी पहले ही भी कई ट्यूटर्स जो उनके घर पे काम कर चुकी थी उनको सिड्यूस कर चुका था वो। उसने एक सर्वेंट को भी मारा था, एक लेडी को मार दिया था उसका रेप करके। तो बहुत ही विलेन टाइप कैरेक्टर है ये, और वो उससे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सिड्यूस नहीं होने देती है। ठीक है। बाद में वो डिसाइड करती है कि वो एक लॉयर से शादी कर लेगी जो कि लजहिन है, उसका नाम 40 ईयर्स ओल्ड है। ये बात पसंद नहीं होती है रास्कोल्निकोव को, और उसे मना कर देता है कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है। ठीक है जी। लजहिन से वो सेंट पीटर्सबर्ग में आ जाते हैं, क्योंकि लजहिन जो है वो पीटर्सबर्ग में कुछ काम को लेकर जा रहा होता है, और वहां पे वो लजहिन उससे मिलता है रास्कोल्निकोव से। दोनों की आपस में झड़प होती है, मतलब पसंद नहीं करते हैं दोनों को। बातचीत के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और बाद में जो उनकी एंगेजमेंट हुई होती है ना लुइसा की और लजहिन की, वो ब्रोक हो जाती है जब वो फाइनली डिनर पे इनवाइट किया होता है लजहिन को डनिया ने, और उसके लजहिन ने मना किया होता है कि आप रास्कोल्निकोव को वहां पे नहीं बुलाओगे। लेकिन रास्कोल्निकोव वहां पे आ जाता है, उसका दोस्त भी साथ में होता है राजुमिखिन। दोनों के बीच में आपस में हॉट वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, और इसी के बाद उसी टाइम धन्या जो है ना मना कर देती है लजहिन को कि वो उससे शादी नहीं करेगी। ठीक है जी। इसी बीच पोर्फरी ट्राई करना चाहता है, टॉर्मेंट कर रहा है, लगातार कंटिन्यूसली टॉर्मेंट कर रहा है रास्कोल्निकोव को। और एक दफा क्या होता है कि पोर्फरी ने मनवा भी लिया होता है, ऑलमोस्ट मनवा लिया होता है रास्कोल्निकोव से कि उसी ने मर्डर किया है पोन ब्रोकर का और उसकी बहन का। लेकिन तभी वहां पे एक लेबरर आ जाता है जो कि उसी टाइम वहां पे उस अपार्टमेंट के पास काम कर रहा था, जिसके पास से पोन ब्रोकर की चेन डिस्कवर हुई थी, और ये माना जा रहा था, और उसे भी टॉर्मेंट किया जा रहा था सोसाइटी की ओर से। और वो उसी टाइम आ जाता है वहां पे और मान लेता है कि मैंने खून किया है उस पोन ब्रोकर का। ठीक है ना। लेकिन वो मतलब उसी टाइम बच जाता है, इसी वजह से जो हमारा रास्कोल्निकोव हीरो है वो बच जाता है इसी वजह से। एक दिन वो उसके अपार्टमेंट में भी जाएगा पोन ब्रोकर के, और बाद में जब वापस आ जाता है ना पोन ब्रोकर के अपार्टमेंट से बाहर आ रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर उसको एक बंदा मिलता है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है ना। वो होता है मार्मेलादोव होता है, उसका फ्रेंड होता है, इससे वो एक बार पहले भी मिल चुका होता है, और उन्होंने ड्रिंक भी किया था साथ में। और फिर वो उसके घर छोड़ने गया था रास्कोल्निकोव उसको, और वहीं पे उसको उसकी वाइफ मिली थी इवानोवना, और कैटरीना इवानोवना, और उसकी जो बेटी मिली थी सोनिया। ठीक है जी। और भी बेटे थे उनके छोटे। और जब वो एक्सीडेंट होगा उसको मिलता है मार्मेलादोव मिलता है रास्कोल्निकोव को, वो उसको उसके घर लेके जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है।
फिर 20 रूबल्स होते हैं जो उसकी माँ ने सेंड किए होते हैं, रास्कोलनिकोव की माँ ने रास्कोलनिकोव के लिए, और वो सोनिया को दे देता है, कैटरीना इवानोवना को दे देता है उसकी जो भी फ्यूनरल होगा उसके खर्चे के लिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि फ्यूनरल होता है उसका, वहाँ पे जाएगा रास्कोलनिकोव जाएगा खाना खाने, उसके फ्यूनरल पे जाता है, वो सभी लोग ड्रंकन हैं, कोई वहाँ पे जो है कोई भी नॉन बंदा नहीं आया रास्कोलनिकोव को छोड़ के, कोई भी सूटेबल आदमी वहाँ पे डिनर के लिए नहीं आया है। ठीक है जी। बीच में जब बीमार होता है ना रास्कोलनिकोव, तब उसकी मदर और उसकी बहन उसके घर आ जाती हैं, तो जिनको वो पसंद नहीं करता है और निकाल देता है उसी टाइम घर से। ठीक है जी। ये थोड़ी माफी चाहूंगा, थोड़ी स्टोरी में पीछे से छूट गया था तो इसको भी ऐड कर रहा हूँ। और वहां पे स्विद्री के लोग हैं ना, वो भी डनिया का पीछा करते करते सेंट पीटर्सबर्ग में आ गया है, और उसकी वाइफ जो थी मार्फा, उसकी डेथ हो गई है, और वो 3000 रूबल्स जो है ना डनिया के लिए छोड़ गई है, लुइसा के लिए छोड़ गई है। ओके जी। और ये उसको कहता है स्विद्री के लोग कि मैं तुम्हें 10,000 रूबल्स मैं अपनी ओर से देता हूँ तुम्हें, और तुम क्या करो कि मेरे से शादी कर लो। लेकिन वो मना कर देती है, वो उसे रेप करने की ट्राई करता है लुइसा का, लेकिन वो बच जाती है, वो गोलियां निकालती है और फायर कर देती है, लेकिन उसे कोई भी गोली नहीं लगती है, और स्विद्री के लोग बच जाता है, और बाद में उसे जानने देता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है जी, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। और उसी रात क्या होता है, वो 3000 रूबल्स दे देगा डनिया को, और उसकी जो है ना स्विद्री के लोग ने बीच में एक लड़की से एंगेजमेंट भी कर ली होती है, जो मात्र 15-16 साल की लड़की थी जो। ठीक है ना। वो 15,000 रूबल्स उस लड़की की फैमिली को देता है, और बाद में एक होटल के रूम में रूम बुक करता है, वहां पे उसको रात को सपने में नाइटमेयर्स होता है उसको एक, और उसमें एक 5 साल की लड़की आती है जो उसे सिड्यूस करना चाहती है स्विद्री के लोग को। वो डर जाता है उससे, और वो सुबह क्या होता है खुद को गोली मार लेता है और वो मर जाता है। इसी ये वक्त पे यहाँ पे स्विद्री के लोग की कहानी खत्म हो जाती है। उसी बार बीच में जब रास्कोलनिकोव खाना खाने गया होता है, फ्यूनरल पे गया होता है मार्मेलादोव के, तो वो वहां पे सोनिया से मिलता है, सोनिया से बात करता है, और सोनिया से अटैचमेंट हो जाती है उसको कहीं ना कहीं। और वो क्या करता है, सोनिया से कन्फेस कर देता था अपना क्राइम की मैंने ही फोन ब्रोकर और उसकी जो स्टेप सिस्टर थी उसका खून मैंने ही किया था। जब सोनिया उसको बताती है कि पॉन ब्रोकर की बहन जो एलिजाबेटा थी, उसकी जो है ना वो उसकी फ्रेंड थी, तो उस टाइम ये बात छुपा नहीं ले सकता है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है रास्कोलनिकोव, और सोनिया उससे कहती है कि तुम जाओ और अपना क्राइम कन्फेस कर दो। ओके। तो और वो उसी टाइम जाता है पुलिस स्टेशन में और अपना क्राइम कन्फेस कर देता है पॉल फ्री के आगे। ठीक है जी। और उसके बाद 1.5 साल के बाद हमारा नोबल आगे चला जाता है, और पिछले 9 महीने से वो जेल में है, साइबेरिया में जेल हुई थी उसको। ठीक है जी। साइबेरिया में जेल हुई थी वो, कुछ टाइम उसने बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करी थी, और बिल्कुल एलियन हो गया था वो। ठीक है ना, किसी से बात नहीं करी थी, अलग ही रहता था। लेकिन बाद में जब वो देखता है कि सोनिया भी उसी के साथ साइबेरिया में आ गई है उसी के साथ रहने के लिए, ताकि उससे जो है ना अपनी सज़ा काटने में आसानी हो, तो वो धीरे धीरे सभी से सोशलाइज होने लगता है वहाँ पे जेल में भी। बाइबल लेके अपने साथ सोता है वो, और उसकी जो है ना एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी दोबारा स्टार्ट हो गई है। वो अब वो बिलीव नहीं करता है कि जो मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता है कि एक ऑर्डिनरी मैन होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन होते हैं। उसे पता है कि आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन गॉड के जो रूल्स हैं ना वो सबके लिए एक हैं, आपको उनमें से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप उनको लांघने की कोशिश करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है जी। मीनवाइल जो डनिया है और उसके राजूमुख ने उसके साथ शादी कर ली है, और वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। जब उसकी माँ को फुलचेरिया अलेक्जेंड्रोवना को जब पता चलता है कि उसके जो बेटा है उसको जेल हुई है, वो उसके बाद मैड हो जाती है और वो उसकी डेथ हो जाती है इसी बीच में। यह थीम है इसकी, सल्वेशन थ्रू सेक्रीफाइस एंड सफरिंग। ओके। और इसी के साथ हमारा नोवेल ये खत्म होता है। आई होप कि आपको जो नोवेल की स्टोरी है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोस